हरे कृष्णा। सब कैसे हो तुम लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आनंद लीलामय विग्रहाय। श्री कृष्ण आनंद लीलामय है। ज्यादा होना चाहिए वॉल्यूम। हरे कृष्ण। अब ठीक है राधा चरण प्रभु, वॉल्यूम अब ठीक है? ओके। रूम में दिक्कत हो रही हो, आप सामने प्लेट ला सकते हैं, लाइव नहीं करते। किसी को वहाँ कोई दिक्कत हो, सुनाई नहीं पड़ रहा हो या दिखाई नहीं पड़ रहा दर्शन, तो आपको पूरा क्लियर दिखेगा लाइव थोड़ी। ये शाम का प्रोग्राम कहाँ होने वाला था? पांडव सेना के। अच्छा, वहाँ कितने आदमी ठहर सकते हैं? 250। यहाँ कितने आदमी आए? कितने भक्त लोग आए? 200 है ना? 200। यहाँ पर कितने आए हैं? 200। यहाँ 200 है। Devotees are inside the rooms. Oh. In kitchens. हरे कृष्ण। लीला लीलामय भगवान के जो कार्य हैं, कार्यकलाप, दैट्स कॉल्ड लीला। Should I speak in English or English? Okay. Yeah. So, Krishna's activities are called Leela, whereas our activities are result of karmic reactions. We cannot do things according to our wish, whereas Krishna's activities are simply according to his wish. हाँ? ठीक है, अंग्रेजी में शुरू किया है, चलते हैं। हिंदी में कौन रिक्वेस्ट कर रहे हैं? अच्छा, और अंग्रेजी में कौन रिक्वेस्ट कर रहे हैं? अंग्रेजी के सामने हम हिंदुस्तानी को पराजय हो गए। ठीक है, मैं बाद में हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा। अंग्रेजी में बोलने से मेरा थोड़ा आसान होता है। Becomes easier for me to speak in English. So now you understand the difference between our activities and Krishna's activities. Krishna's activities are out of his own sweet will. Krishna wishes and Yogamaya arranges. Ajopi san abhayatma bhutanam ishwaropi san prakritim sham adhishthaya sambhavami atma mayaya. Out of his own maya mean out of his own, the arrangement of his internal potency, Atma Maya. There are two mayas. One is Mahamaya and the other is Atma Maya. Or
Hare Krishna, yeah. Or Jogomaya. So Krishna's activities are arranged by Jogomaya. Krishna wants something and Jogomaya makes the arrangement. Like for example, it's daytime, Krishna is tending the cows in Vrindavan, and then all of a sudden Krishna felt, let me dance with the gopis. And immediately it becomes night, full moon night. And Krishna plays the flute, all the gopis come running. And Krishna dances. Can we do something like that? Can we say, now it is day, let it become night, so that I can have a party? Can we do things like that? No, we can't. Because Krishna can. Therefore, Krishna is Ichamay. Krishna can act according to his own sweet will. But what is the purpose of Krishna's pastimes, Leela? To give pleasure to his devotees. Krishna does things just for giving pleasure to his devotees. And by giving pleasure to devotees, Krishna also derives his pleasure. That's how Krishna is Anandamaya. And through Krishna's pastimes, Krishna teaches us the benefit of taking shelter of him. The benefit that we can derive by taking shelter of Krishna. Like through his pastimes, what do we see? Krishna creates a situation which is very dangerous. But then Krishna rectifies that situation. Like for example, one day they were tending the cows in the forest of Vrindavan. And then all of a sudden there was a forest fire. Generally the forest fire comes from one side, so one can try to run away. But this forest fire came from all 8 directions, from all sides. Can you imagine what the situation is like? In the middle of the forest, and then all of a sudden there is a fire, and the fire is from all sides. So what do Krishna's devotees do? Krishna, Krishna, save us. And then what did Krishna do? Krishna said, close your eyes. So they closed their eyes, and Krishna swallowed the forest fire. Can you imagine how relieving that situation was? हिंदी में बोलना होगा. सब बोलते हैं, मैं जब अंग्रेजी बोलता हूँ सब हिंदी भाषी भी समझ लेते हैं. Shri Krishna
आनंद लीलामय विग्रह है। लीला का मतलब होता है जो कार्य भगवान अपने इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। हम क्या कुछ अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं? नहीं, लेकिन भगवान कर सकते हैं। हाँ, भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान इच्छामय है। अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ भगवान चाहते हैं कर सकते हैं। तो वैसे भगवान अपना लीला विलास करते हैं। जैसे कि भगवान जो कुछ चाहते हैं जोगमाया उसके आयोजन कर देती है। दिन की वक्त भगवान वृंदावन के वन में गाय चरा रहे हैं और भगवान की इच्छा हुआ मैं अब गोपियों के साथ थोड़ा नाचना चाहता हूं। बस झट से रात्रि हो जाती है। आकाश में पूर्ण चंद्रमा प्रकाशित होता है। हम क्या ऐसे कर सकते हैं? ये है हम और भगवान में अंतर। भगवान भगवान है और हम सब जीवात्माएं हैं। एक ये गलत विचार आजकल भारत में बहुत पॉपुलर हो गए हैं कि इंसान भगवान बन सकता है। कोई आदमी तो ऐसा भी कहते हैं कि इंसान ही भगवान है। इसका कारण ये है कि जानकारी नहीं है भगवान का मतलब क्या होता है। भगवान सर्वशक्तिमान है। हम क्या कभी सर्वशक्तिमान बन सकते हैं? शक्तिमान थोड़ा बहुत बन सकते हैं, बल्कि सर्वशक्तिमान इसलिए सही रूप से भगवान के बारे में जानकारी होना चाहिए। भगवान सारे कारणों का परम कारण है। भगवान सारे सृष्टि के कारण है। भगवान सारे संसार को पालन कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है किसकी कृपा से हो रहा है? सॉरी। जो कुछ हो रहा है, जैसे सूरज का उदय किसकी कृपा से हो रहा है? सूरज का उदय, राइजिंग ऑफ द सन, is it an accidental phenomena? Does the sun rise just like that, or did somebody make the arrangement? बुद्धिमान का विचार होगा, जरूर किसी ने किया है। और हमको अगर सही रूप से जानकारी होना चाहे तो हम शास्त्र के माध्यम हम जान सकते हैं। जच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहानाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा जस्सा गया भ्रमति संभृत काल चक्रो। अर्थात सूरज
जक्षुरेश सविता। सविता या सूर्य है भगवान के आँख, और ये सारे समस्त ग्रहों का राजा है। राजा समस्त सूर्यमूर्ति, अशेष तेज, इनका असीम तेज है। और वो सूरज भगवान की आज्ञा से भ्रमण करते हैं काल की चक्रों में। संभृत कालो चक्रो जस्सा गया भ्रमति संभृत कालो चक्रो। ऐसे हमारे शास्त्र में सारे ज्ञान दिया गया है, प्राप्ति हो सकते हैं। जो कुछ हम जानना चाहते हैं शास्त्र के माध्यम हम जान सकते हैं। जैसे कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, भगवान के साथ हमारा संपर्क क्या है। इसमें कोई कल्पना या मन से बनाया हुआ कुछ तैयारी करने का जरूरत नहीं है। शास्त्र के अनुसार हम प्राप्त हो सकते हैं। नहीं तो ये जो विषय जो है वो हम ये विषय जो है वो हम मन की कल्पना के द्वारा जान नहीं सकते। तो भगवान लीलामय है। अपनी इच्छा के अनुसार भगवान अपने लीला करते हैं, और लीला का उद्देश्य है सबको आनंद प्रदान करना। और इस लीला के माध्यम भगवान आनंद आस्वादन करते हैं और सबको आनंद प्रदान करते हैं। आनंदमय के साथ जो रहते हैं वो भी आनंदमय बन जाता है। इस सिलसिले में प्रभुपाद एक दृष्टांत दिया कि जब कोई रईस, बहुत रईस आदमी एक पार्टी देते हैं, जो भी वहां जाता है पार्टी का मजा उठा सकते हैं। वैसे ही भगवान का जो लीला है ये एक महोत्सव जैसे है। सारे कार्य महोत्सव जैसे हैं। और भगवान क्या करते हैं, कभी कभी इसके द्वारा भगवान आनंद प्रदान करते हैं। और आनंद कैसे देते हैं कि कभी कभी कोई भक्तगण कोई खतरे में गिर जाते हैं और वो खतरे से भगवान उद्धार करते हैं। ऐसे स्वाभाविक स्थिति में हम रहते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब कोई मुश्किल होता है, बहुत सारे when the situation becomes very difficult and then we become saved from that situation, then we can really appreciate that. वही मैं हिंदी में भी बोलने वाला था। एक दिन गोप बालकों के साथ कृष्ण गाय चरा रहे थे वृंदावन में, और अचानक एक दावानल सबको घेर लिया। ऐसे दावानल बोलते हैं ना, फॉरेस्ट फायर। तो वैसे फॉरेस्ट फायर तो एक दिशा से होता है, बल्कि ये जो हुआ चारों तरफ से हो गया। और इस स्थिति में देखो वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो भक्तगण जब इस ऐसे स्थिति में आते हैं, ऐसे डेंजरस सिचुएशन में आते हैं, तो भक्तगण क्या करते हैं, कृष्ण को शरण लेते हैं। और तब श्री कृष्ण ने बोला, तुम सब आंखें बंद कर लो। वो
आंखें बंद कर लिया, एक पलक के लिए आंखें बंद कर लिया। जब आंखें खोला, देखा फॉरेस्ट फायर नहीं है, दावानल नहीं है। जब आंखें बंद किया तो क्या कृष्ण ने क्या किया? वो दावाग्नि को खा लिया। कृष्ण एट द फॉरेस्ट फायर। अब सोचो, अचानक यहां आग लग गया है, क्या करोगे? निकलने की कोशिश करोगे, बल्कि निकलने का अगर कुछ जगह नहीं है, दरवाजा बंद है, हाल कैसा होगा? और तुम अगर बोला कृष्ण कृष्ण रक्षमाम, हे भगवान रक्षा करो, और भगवान बोला आंखें बंद कर लो पल भर के लिए। और जब हम आंखें खोला तब देखा आग नहीं है। कैसा लगेगा? इस तरह भगवान हमको खतरे में डालते हैं और वहां से उद्धार करते हैं। तब हमको पता चलता है भगवान कितने महान हैं, भगवान कैसे रक्षा करते हैं भक्तजनों को। भगवान को जो शरण लेता है उसको कभी कुछ असुविधा या मुश्किल नहीं होता है। ऐसा नहीं कि खतरा नहीं होगा। It's not that we are, because we become devotees, we won't face difficulties. But the nice thing is, Krishna will save us from that difficulties. Krishna will save us from those difficulties. If there is no difficulties, then there is no question of saving from the difficulty. और कृष्ण ने बहुत नटखट भी है, नटखट कन्हैया। ये नटखट होते हुए कृष्ण, नटखट होते हुए भी कृष्ण सबको आनंद देते हैं। जैसे कभी कभी कृष्ण ने दूसरे गोपियों के घर में जाकर मक्खन चुराते हैं। केवल अपना घर से ही मक्खन नहीं चुराते हैं। अपना घर से कृष्ण ने मक्खन नहीं चुराता था, दूसरे के घर में जाकर मक्खन चुराते थे। बटर थीफ। तो गोपियां ने आकर कंप्लेन किया, तो माँ यशोदा ने सोचने लगी, मेरा घर में तो इतना मक्खन है, तो लाला क्यों दूसरे के घर में जाकर चुराते हैं? क्या मेरा घर का मक्खन उतना स्वादिष्ट नहीं है? तो माँ यशोदा ने सबसे वरिष्ठ गाय चुना, उसको सबसे अच्छा घास खिलाया और उस गाय से दूध लेकर माँ यशोदा ने मक्खन बना रहा था। तो कृष्ण ने वहाँ आकर माँ के पास आया। माँ यशोदा ने, शी वॉज चार्निंग द बटर,
But Krishna came and just embraced his mother's legs. माँ यशोदा देखा बच्चा आया, तो माँ यशोदा को पता चला बच्चा दूध पीना चाहती है, तो she stopped churning the butter, picked up Krishna, sat down and offered her breast to feed Krishna. Or Krishna also very happily, he was drinking his mother's milk. Then all of a sudden Maa Yashoda remembered that the milk is boiling on the fire, so it may fall off, spill over. So she immediately put Krishna down and went to take care of the milk. Krishna was quite shocked. So happily he was drinking his mother's milk, and all of a sudden his mother dropped her like that. First he was shocked, then he felt hurt. See how my mother treated me. So he cried for a while. Then he became angry. What's the big deal about that milk? That milk was for me only. And I was drinking her milk, and she dropped me like that and went to take care of that milk. So Krishna became so angry, he picked up a stone and he broke the pot that Mother Yashoda was churning from. And that pot was full of yogurt and buttermilk and butter. So it splashed all over the room. Then Krishna went to next room and he started to steal the butter. And so Mother Yashoda, after taking care of the milk, when she came back, she saw the pot was big, clay pot was broken, and the whole room is flooded with buttermilk and butter. And she realized it must be that Krishna. So she felt this boy has become too much. So she picked up a stick. The child has to be reprimanded. The child has to be chastised. And seeing that his mother coming, Krishna was standing on a mortar, lowering the butter. Krishna jumped out of the mortar and ran. Jashoda bhi alu khalad dhavomanam paramrishtamattan tato drutta gopa. Then Mother Jashoda caught Krishna, and seeing the stick in his mother's hand, Krishna was afraid. Krishna started to cry, and with the back of his hand he started to wipe the tears. Rudantam muhur netram jugman rijantam karam bhoja jugmena shatam kravitra. So, is this Supreme Personality of Godhead? Sure, people have difficulty. तुम लोग बोलते हो कृष्ण भगवान है, लेकिन ये कौन से भगवान है जो माँ के डर से रोने लगते हैं? ये है भगवान की लीला.
इति दृक्ष लीलाभीर वेरी नाइस। तो इससे हम क्या जानकारी हो रहा है? इति दृक्ष लीलाभीर आनंद कुंडे सघोषम निमज्जंतम। सघोषम का मतलब क्या है? What's the meaning of the word सघोषम? आप लोग तो बहुत पंडित हैं। सघोषम का मतलब है भक्त का, अपने भक्तों को। निमज्जंतम, निमज्जंतम का मतलब क्या है? ड्राउन, डुबा देते हैं। निमज्जंतम किसमें? आनंद कुंडे, पानी में नहीं, लेकिन आनंद के कुंड में। आनंद कुंडे निमज्जनतम, अपने भक्तों को। तो भगवान लीला क्यों करते हैं? अपने भक्तों को आनंद के सागर में डुबाने के लिए लीला करते हैं। सघोषम निमज्जनतम अक्षपयंतम। कृष्ण केवल अपना घर से ही मक्खन नहीं चुराते थे, कृष्ण और गोपियों के घर में जाकर भी चुराते थे। ऐसे एक गोपी है प्रभावती, मां यशोदा की सहेली है। उनके घर में जाकर कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ, बच्चे 5 साल के बच्चे, 5 साल भी नहीं हुआ है, जब 5 साल हुआ कृष्ण का, तो वन में गाय चराने के लिए चले जाते, बछड़े को चराने के लिए। मतलब तब कृष्ण की उम्र 5 साल भी नहीं हुआ, 4 साल कुछ कोई महीना। और अपने सखाओं के साथ कृष्ण वो गोपी के घर जाते थे, और जाकर गुजरात में एक ये होता है ना, एक के ऊपर एक चढ़कर, क्या बोलते हैं उसको? दही हांडी। उसका प्रचलन कृष्ण ने किया है। जैसे एक के ऊपर से एक चढ़कर दही या मक्खन की हंडी उतारते हैं, कृष्ण ने उतारा सखाओं के साथ। और बहुत मजे में ये मक्खन खाया सखाओं के साथ। कुछ बंदर भी वहां आ गया था, बंदर को भी खिलाया। तो जब बंदर को बोला ले और थोड़ा ले ले, बंदर बोला पेट एकदम भर गया है। तो कृष्ण ने बोला देखो ये मक्खन इतना खराब है कि बंदर भी खाना नहीं चाहता। ये कहकर कृष्ण ने वो मक्खन के पात्र टूट दिया जमीन में फेंक कर। और वो गोपी का बच्चा बिस्तर में सो रहा था। तो कृष्ण ने जाकर उसको पिंच किया और बच्चा रोते हुए जाग उठा
तो गोपी तुरंत आ गया बच्चे के ये शब्द सुनकर, रोने का शब्द सुनकर। तब कृष्ण और सखावगन हंसते हुए भाग गया। तो प्रभावती ने माँ यशोदा के पास जाकर कंप्लेन किया, देख तेरा कन्हैया ऐसा ऐसा करता है। माँ यशोदा ने पूछा कब किया, समय बताया। अरे उस समय तो कन्हैया मेरे पास बैठा हुआ था। ओ तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, बल्कि उस समय तो बच्चा मेरे पास ही था। तो माँ यशोदा को ऐसे कुछ कंफ्यूजन हो गया और वो गोपी बहुत गुस्सा हो गया। अच्छा ठीक है, एक दिन मैं उसको पकड़कर लाकर तुमको दिखाऊंगा वो क्या करता है। तो गोपी ने प्रतीक्षा कर रही है प्रभावती। ये कहानी गर्ग संहिता में है। तो एक दिन कृष्ण आया, गोपी प्रतीक्षा कर रही थी। कृष्ण आया, मक्खन के भांड उतारा, मक्खन खाया, बंदरों को खिलाया। जब बंदर भी नहीं खाना चाहा तो बोला ये मक्खन इतना खराब है कि ये बंदर भी खाना नहीं चाहता है। ये कहकर उसको हंडी को तोड़कर ये बच्चा को और जब बच्चा रोकर जाग उठा तो कृष्ण ने घर से भागने का कोशिश किया अपने बच्चों के सखाओं के साथ। और वो गोपी दरवाजा के पीछे प्रतीक्षा कर रहा था। तो जब कृष्ण निकलने को गया तो कृष्ण को पकड़ा, चल आज तुझे पकड़ा गया है, तेरे माँ के पास जाकर मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा तू क्या करता है। तो कृष्ण ने बोलने लगा, नहीं छोड़ दो, मैं और कभी ऐसा नहीं करूंगा। माँ के पास मत ले जाओ, माँ को बहुत डांटेगा, मार भी सकते हैं। मैं वादा करता हूँ मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगा मक्खन चुराने के लिए। गोपी बोला नहीं, हम देखा तेरे माँ बोला कि मैं झूठ बोल रही थी, तो आज उसको दिखाऊंगा कि मैं सच ही कह रहा था। ये कहकर कृष्ण को अपने कंधे पर चढ़ाकर माँ यशोदा के पास गया, जाके बोला, देख यशोदा आज एकदम पकड़ा गया। I caught him red-handed, and now I came to you with him to show that what I had been complaining was nothing but the truth. तो माँ यशोदा हंसने लगी। अरे मैं उसको पकड़कर लाया तेरे सामने और तू हंस रही है। उस दिन तो बोला कि मैं झूठ बोल रहा था, अब जब पकड़ के लाया तो तू हंस रही है जैसे अपना बच्चा कुछ भी गलत काम नहीं किया।
माँ यशोदा बोला, देख तो किसको लाया है। तो गोपी जब देखा कि अपना कंधे पर अपना बच्चा को लेकर आया, तो माँ यशोदा ने, तो गोपी एकदम शर्मिंदा हो गया और बच्चे को लेकर अपना घर जाने लगा और सोचने लगा कि कैसे हुआ, मैं तो कृष्ण को पकड़ा, कृष्ण का वो शब्द भी मेरा कान में अब भी ये सुनाई दे रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, मेरे माँ के पास मत ले जाओ, माँ हमको डांटेंगे। और क्या हुआ, देखता है कि मैं अपने बच्चे को लेके कंधे में बैठा कर ले गया माँ यशोदा के पास। अचानक वो सुना ये कृष्ण हंस रहा है, देखा कि कृष्ण है। बोला, कृष्ण तू कितना बदमाश है, अपने माँ के सामने हमको इतना शर्मिंदा किया है, मैं तुझे पकड़ कर ले गया। कृष्ण ने बोला, मैं बोला ना आपको ले जाओ, हमको मत ले जाओ। तो जब लेकर गया तो हमको तो कुछ करना पड़ता ना, तो इसलिए मैं अपने आप को रक्षा करने के लिए तुम्हारा बच्चा बन गया। ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हारा बच्चा बना, अगले बार अगर तुम हमको हमारे माँ के पास ले जाओगे तो मैं तुम्हारा हस्बैंड बन जाऊंगा। तो ऐसे कृष्ण आनंद देते हैं। इति वृक्ष लीलाभीर आनंद कुंडे सघोषं निमज्जन्तम अक्षपयन्तम। तो आप सोचो, सुनकर ही कितना आनंद होता है, अगर देखता था वहां तो कैसा लगता। तो ये है भगवान की लीला। भगवान अपने सखाओं के साथ भी ऐसे मजाक करते हैं। सखाओं के साथ मजाक करते हुए कृष्ण कुश्ती लड़ते हैं। कुश्ती का एक शर्त होता है, जो हार जाता है वो विजयी को अपने कंधे पर चढ़ाकर उसको चक्कर मारना पड़ता है। तो कृष्ण कभी कभी हार जाता है, तो सखा ने बोलते हैं, कृष्ण चलो अपने कंधे पर हमको उठाओ और ऐसे ये चक्कर में 3 दफा घुमाओ। कृष्ण बोला, नहीं, नथिंग डूइंग। अरे दैट वाज द कंडीशन, वो तो शर्त था। हाँ, शर्त था, जो पराजित होगा वो विजयी को लेकर जाएगा। तो मेरा तो पराजय नहीं हुआ। वहाँ एक केला का छिलका था, उस पर मैं गिर गया और तुम अब मेरे ऊपर चढ़कर बोला मैं विजयी बन गया, मैं विजयी। तो सखा ने बोला, अरे छिलका कहाँ दिखा, और सबको पूछ, कितना तकलीफ उठाकर मैं तुझको हराया और अब तू ये एक्सक्यूज दे रहा है। तो कृष्ण ने अपने कंधे के पर चढ़ाने को इनकार कर देते हैं और वो सखा बलपूर्वक कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाता है। तो आप सोचो, कौन भक्त भगवान के कंधे में चढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, उनका शरीर में पैर रखना होता है। हाँ, तो
कौन मंदिर में जाकर कौन भक्त भगवान के विग्रह के ऊपर पैर रखेंगे? करेगा कोई? तो ये है भगवान के साथ अपने ब्रज के भक्तगणों का लीला विलास। उन लोगों को पता नहीं रहता है कि कृष्ण भगवान है। ऐसा नहीं कि उन लोगों को पता नहीं है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन कृष्ण के प्रति उनका प्यार इतना गहरा है ताकि उनको ये नहीं लगता कि कृष्ण भगवान है। उनका मनोभाव ऐसा है, चाहे तुम भगवान हो या ना हो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम भगवान हो या ना हो, मैं तुम्हारे प्रति मेरा प्यार, ये ही मेरा, आई cannot help but love you. Even if you are not the supreme personality of Godhead, still I would love you. यह है भक्तों का मनोभाव। और सखागण के साथ भक्तों भगवान का ऐसे मजाक पूर्वक लेन देन होता है। भगवान के एक सखा है मधुमंगल। मधुमंगल है सांदीपनि मुनि के पुत्र, ब्राह्मण। मधुमंगल कृष्ण को बोलता, कृष्ण मैं ब्राह्मण हूं, तो कुछ श्रद्धा तो होना चाहिए ना। कोई बोलता है तू क्षत्रिय है, कोई बोलता है तू वैश्य है, जो चाहे जो भी हो, बल्कि मैं ब्राह्मण हूं, हमारे सामने माथा टेकना है। कृष्ण बोलता है, देख मधुमंगल, जन्म और कर्म दो विचार है। तो जन्म से कर्म अधिक होता है। कर्म के अनुसार आदमी को पहचाना चाहिए। ओ ठीक है, तो पता तेरा कर्म कैसा है। देख मेरा उम्र जब 7 दिन का था, मैं पुतना को, राक्षसी को मार डाला। मेरा उम्र जब 7 साल का था, तो मैं गोवर्धन को हाथ पर उठा लिया, और मैं कालिया नाग जो सारे जमुना को जहरीला कर दिया था, उसको मैं वश में लाया। तो मधुमंगल हंसने लगा। देख, घमंड का कुछ सीमा होना चाहिए। तू हर समय सारे कार्य का क्रेडिट लेना चाहता है। 7 दिन की उम्र में पुतना को मार डाला। 7 दिन की उम्र में कौन ऐसे राक्षसी को मार सकता है? लेकिन सबको जानकारी है कि देवताओंगण बच्चे को रक्षा करता है। तो तेरा ये हाल देखकर देवतागण आकर पुतना को संहार किया। गिरिराज को, गोवर्धन को हाथ पर उठाने का क्रेडिट ले रहा है। सब मदद दिया था, इसलिए सारे को जॉइंट एफर्ट में गोवर्धन पर्वत उठाया गया, लेकिन तू उसका क्रेडिट ले रहा है। और कालिया नाग, तेरा हाल तो सबको पता है। सब देखा कि तू मर गया।
और सारे ब्रजवासियों को उस स्थिति में इतना शोकार्त स्थिति देखकर मेरा कुछ दया हुआ था। और उस समय मैं सर्प निधन मंत्र उच्चारण करने लगा और मेरे ये सर्प निधन मंत्र सुनकर डर की मारे कालिया से तुझको छोड़ दिया और तब कालिया के सर पर चढ़कर तू नाचने लगा, जैसा कि सारे काम का क्रेडिट तू ले रहा था। तो कृष्ण ने बोला, ओ ये तो सही है, ये तो हमको पता नहीं था। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय। ऐसे कृष्ण ने उनको प्रणाम करने लगा। तो ऐसे भक्तों के साथ कृष्ण ने लीला विलास करते हैं। गोपियों के साथ कृष्ण का लीला कैसा होता था? कृष्ण गोपिया के साथ कृष्ण का जो संपर्क, वो that was like a loving relationship between young boy and a young girl. एक नौजवान लड़का के साथ एक नौजवान युवती का जो प्यार का संपर्क होता है, वैसा संपर्क। इसका एक वर्णन ऐसे हुआ, कृष्णा राधा रानी के साथ कृष्ण का प्यार का संपर्क है और राधा रानी का शादी हो गया था अभिमन्यु के साथ। लेकिन ये तो लीला है ना, राधा रानी का अभिमन्यु के साथ शादी हुआ, लेकिन अभिमन्यु कौन है? कृष्ण का छाया। कृष्ण का छाया है अभिमन्यु। और ये क्यों? क्योंकि प्यार में जब रुकावट आता तब प्यार और गहरा हो जाता है। हाँ, है ना? तो ये कहा जाता है कैसे, जैसे नदी में जब रुकावट आता है तो उसका स्रोत और तेज हो जाता है। प्यार में जब रुकावट आता है तो प्यार और भी गहरा होता है। इस सिलसिले में एक वर्णन ऐसे है, कृष्ण कभी कभी राधा रानी को बोलते हैं चलो शादी कर लेते हैं। राधा रानी बोलते हैं ना, तब तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो ऐसे प्यार के संपर्क में और to make it more exciting, there is this arrangement, like Radharani is married to Abhimanyu, but Abhimanyu never touched her, and Abhimanyu's mother suspected that Jotila suspected that बहू ये कृष्ण का साथ उसका कुछ संपर्क है। तो सास ज़रूर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो एक दिन अभिमन्यु दूर कहीं जाना पड़ा उसको,
तो माँ के पास बिदा लिया। माँ, कुछ दिन के लिए मैं जा रहा हूँ। अच्छा बच्चा, फिर से सुबह वापस आ जाना। तो जब अभिमन्यु चला गया, कृष्ण ने अभिमन्यु का रूप लेकर आया। जटिला पूछा, क्या हुआ, इतना जल्दी जल्दी आप वापस आ गया? हाँ माँ, I was missing you very much. That's why I decided I'll do that job some other time. Mother was very happy. बोला ठीक है जी, घर अंदर जाके आराम कर। तो कृष्ण ने अंदर गए अभिमन्यु के रूप में, और उस समय असल अभिमन्यु आ गया। और जटिला ने पूछा, अरे तू कौन है? मम्मी मम्मी पहचाना नहीं? मैं आपका लड़का अभिमन्यु हूँ। मेरा लड़का अभिमन्यु तू। ये कहकर एक ब्रूम लिया और झाड़ू लिया, उसको मारने लगा। बल्कि बाद में पता चला कि वो जो पहले जो आया था वो है कृष्ण, और ये मेरा असल लड़का। और जटिला और कुटिना ने ऐसे प्रतीक्षा करता था कि उसको पता है कि कृष्ण के साथ कुछ क्या बोलता है, हेर फेर हो रहा है। कुछ तो बोला ठीक है, उसको कभी ना कभी पकड़ना है, पकड़ के उसको। तो एक दिन कुटिला, अभिमन्यु का बहन, सुना कि राधा रानी का घर से कृष्ण के स्वर, कंठस्वर सुनाई दे रहा है। मतलब कृष्ण राधा रानी के घर में है। तो हो गया, सोचा आज पकड़ा गया है, आज जरूर उसको पकड़ाऊंगा। लेकिन जब घर में दरवाजा खोलकर जब घर में घुसा, कृष्ण ने खिड़की से उतारकर भाग गया। कुटिला ने बहुत निराश हो गया, इतना नजदीक आकर भी मैं उसको पकड़ा नहीं सका। लेकिन उस समय देखा कि ये इन दिस हेस्ट, ये जल्दी जल्दी निकलने के समय कृष्ण आपका बांसुरी लेने को भूल गया, और बांसुरी बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है। बोला ठीक है, ये तो पकड़ा गया। तो बांसुरी लेकर एक हाथ में बांसुरी लिया, दूसरा हाथ में राधा रानी को पकड़कर ले गया चत्तर में, इन द कोर्टयार्ड। सबको बुलाया। और सबको सुनाने लगा क्या हुआ, आज कृष्ण को पकड़ा है। यद्यपि कृष्ण को नहीं पकड़ा, बल्कि ये प्रमाण हो गया कि कृष्ण राधा रानी के घर में था। और राधा रानी उस समय with her eyes casting downwards started to cry. At that time, पूर्णमासी जोगमाया वहाँ आया।
पूर्णमासी ने पूछा, क्या हुआ क्या हुआ, मेरे राधिका क्यों रो रही है और तुम यहाँ पर इकट्ठा होकर क्या कर रही हो? तो कुटिला ने जब पूर्णमासी को भी बताने लगा क्या हुआ है। तो पूर्णमासी ने हंसने लगी। तो ये बहुत गुस्सा हो गया, इतना सीरियस ये है और आप ऐसे हंस रही हैं। तो पूर्णमासी ने बताया, अरे तुमको पता नहीं है कि कल बांसुरी को बड़ा बारिश हुआ था। There was a rain of flutes और जगह जगह में बांसुरी है। चल कुटिला तेरे घर में जाकर देखता हूँ। वहां देखा 3 बांसुरी उनका। जटिला चल तेरे घर में देखता है, वहां 12 बांसुरी। ऐसे पूर्णमासी ने राधा रानी को शी केम टू हर रेस्क्यू, रक्षा किया। लेकिन राधा रानी का मन में बहुत ही शी वॉज फीलिंग वेरी रिमोर्स, बहुत ही शोक हो रहा था कि ये जीवन रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शरीर त्याग देता हूँ। क्योंकि मैं तो कलंकिनी हूँ। तो उस समय कृष्ण ने माँ यशोदा के गोद में बैठकर दूध पी रहा था। तो अचानक कृष्ण अचेतन हो गया और अचानक ऐसे कृष्ण को अचेतन होते हुए देखकर माँ यशोदा ने रोने लगी और नंद महाराज को बुलाने लगा, देखो देखो मेरा बच्चा को क्या हुआ। नंद महाराज भी आकर देखा, ऐसा लगता है कि उसका शरीर में जीवन नहीं है, जान नहीं है। तो माँ यशोदा ने बोला, तुरंत एक वैद्य को बुलाओ। तो जब नंद महाराज घर से निकला, देखा और दिशा से एक वैद्य आ रहा है। वैदिक संस्कृति में पोशाक देखकर पता चलता है क्या कौन है, वैद्य कौन है, क्षत्रिय कौन है, नौकर कौन है, पंडित कौन है, ऐसे ब्राह्मण कौन है, ऐसे वेश से पता चलता है। तो देखा एक वैद्य आ रहा है, तो बोला, अब वैद्य जी मेरा बच्चा का ऐसा हाल हुआ है, आप जल्दी जल्दी आइए। क्या हुआ? वो अचानक वो अचेतन हो गया। कोई बात नहीं, मैं अचेतन क्या, मैं मुर्दा को भी बचा सकता हूँ, चलो देखता है। तो देखकर बोला, हाँ इसका हाल बहुत खराब है, इसको संभालना बहुत मुश्किल है, इसका इलाज कुछ नहीं है? नंद महाराज ने पूछा। इलाज है जमुना के पानी। वो जमुना के पानी, जमुना तो पास में ही है, हम पानी लाएंगे। नहीं, वो पानी ऐसे एक बाल्टी में लाना पड़ेगा, ऐसे जिसमें हजारों होल्स हैं, छिद्र है। वो कैसे संभव? हजारों छिद्र के पात्र से हम कैसे पानी लाएंगे? हाँ, लेकिन जो सती हैं वो ला सकेंगे। तो माँ यशोदा बोला, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ।
बोले नहीं नहीं, माँ अगर लाएंगे तो चलेगा नहीं। तो बहुत सारे ब्रजवासी, ब्रज युवतीगण, गोपीगण आया, एक के बाद एक कोशिश किया, बल्कि जब वो when they picked up the bucket, all the water drained out. तो ये वैद्य बोलने लगा, हाल तो बहुत खराब है, लगता है कि वृंदावन में एक भी सती नारी नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूँ विचार करके कोई है या नहीं। तो कैलकुलेशन किया, हाँ 2 नाम आ रहा है। कौन कौन? जटिला और कुटिला। तो तुरंत सब जाकर जटिला और कुटिला को बताया क्या हुआ, और ये बोला, वैद्य बोला विचार करके कि आप दोनों ही वृंदावन में सती नारी है। तो बहुत घमंड के साथ, हाँ वो वैद्य बहुत अच्छा है, उसको पता है क्या क्या है, चलो कोई बात नहीं, हम लाएंगे पानी। कुटिला ने बोला, माँ मैं लाता हूँ, आप क्यों कष्ट उठाएंगे। ये कहकर कुटिला बकेट उठाया, पानी जमुना में गई, और जब पानी से वो निकला, सारे पानी गिर गया। तो जटिला ने बोलने लगा, तू हमारे कुल के कलंकिनी है, तू जमुना में गिर जा। और कहकर खुद गया, वो भी जाकर जब उठाया, सारे पानी गिर गया। तब वैद्य ने बोला, हाल तो बहुत खराब है, ठीक है मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, और कोई है या नहीं। और कुछ समय विचार करने का बाद बोला, हाँ एक नाम निकला है। क्या? राधिका। और जटिला और कुटिला ने हंसने लगी, राधिका सती, गिव अस अ ब्रेक। तो लेकिन नंद महाराज ने कोई परवाह नहीं किया, सीधा गया राधा रानी के पास, बताया, देख राधिका। राधा रानी ने रोने लगी। सब तो जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा हाल कैसी है, तो हमें शर्मिंदा मत कीजिए। नंद महाराज ने बोला, देख राधिका, ये कृष्ण का जान की सवाल है, तू अगर नहीं आएगी तो और कोई उपाय नहीं है। तो ये सुनकर राधा रानी बहुत ही विनम्र भाव से अपना सर झुकाकर वहाँ आया, धीरे धीरे वो पात्र को उठाया, जमुना के तट पर गए और वहाँ से डुबाकर जब पात्र को उठाया, एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। ऐसे कृष्ण ने प्रमाण किया कि सबसे श्रेष्ठ सती कौन है। Let's just sing one song in glorification of Radharani. I don't know whether you'll be able to sing it, but
but I hope you will. Radhika Sharodo Indu Nindi Mukho Mandali Kuntale Vichitra Veni Champako Pushpo Shobhuni Radhika Sharodo Indu Nindi Mukho Mandali Kuntale Vichitra Veni Champako Pushpo Shobhuni Indu Khamandali Kuntale Vichitra Veni Champako Pushpo Shobhuni. My throat is also not giving. Anyway, maybe tomorrow we'll sing it. We'll have the copies and I hope I'll feel better. So, शिवजी भी राधा रानी के वंदना किए हैं. ये शिवजी का वंदना है. मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी. सो ये ऊर्ध्वनाय तंत्र से ये इसका मिलता है. मुनिंद्र वृंद सारे मुनिगण उनका वंदना करते हैं. मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी. त्रिभुवन के जितने सारे शोक हैं वो हरण करती है राधा रानी. त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी. उनका मुख कमल बहुत ही प्रसन्न है और वो श्रीमती राधा रानी वृंदावन के कुंज में विलास लीला विलास करते हैं. ब्रजेंद्र भानु नंदिनी. ये राधा रानी है ब्रजेंद्र भानु, ब्रजेंद्र के राजा, वृंदावन के राजा नंद महाराज के पुत्र. ब्रजेंद्र भानु नंदिनी वृषभानु के कन्या श्रीमती राधा रानी है महाराज वृषभानु के कन्या. ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते. और ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के संग में लीला विलास करते हैं. ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम. कब आप मेरे प्रति कृपा पूर्वक दृष्टिपात करेंगे. तो वैसे शिवजी भी राधा रानी का कृपा प्राप्ति के प्रार्थना करते हैं. ये जो कृष्ण का वृंदावन लीला बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस लीला को सही रूप से समझने का कोशिश करना चाहिए. अगर हम सोचेंगे कि कृष्ण एक मामूली इंसान है तब तो ये लीला हम समझ में नहीं पाएंगे. लेकिन जब हमको पता चलेगा कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है तब हम कृष्ण को लीला सही रूप से उपलब्धि कर पाएंगे. Thank you all very much. Hare Krishna.